नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। आप सभी के स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। मैं हूँ आपके होस्ट जोशी रेड्डी। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटोरीज ऑफ स्क्वामिश, कैट्सी, सिल्वर टूथ or Musqueam nations. United Nations did a research from 1992 until 2022 and found that almost 1 billion people are obese in the world. The exact number is 980 million people who are obese. 4 million people are obese in Canada. The reason given that we as women consume unhealthy foods and not being active. If we are obese, then later in life we pay for our health conditions. They suggest to eat plant-based, healthy foods and avoid processed meats and foods. I wish you all good health in 2024. Happy Shivratri to you all. It falls on March. Mahashivratri festival is celebrated across the country with immense happiness and enthusiasm. According to the Hindu calendar, the festival is observed on the 14th day of the dark half of the lunar month of Palguna and Magha. The festival commemorates the wedding of Shiva and Parvati and the occasion that Shiva performs his divine dance called the Tandav. आप सभी के फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम वापस आते हैं अपने स्पॉन्सर के मैसेज के बाद। क्या आप अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हो या अपने घर से पैसे निकालकर अपने किचन या अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो लेकिन बैंक्स ने आपको मना कर दिया है? आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यानी विक प्रसाद को। मैं एक इंडिपेंडेंट मॉर्गेज ब्रोकर हूं जो कई बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस और प्राइवेट लेंडर्स के साथ काम करता हूं। For more information, please call Vic Prasad at 604-306-6647. Vic Prasad is one of the top brokers of Invis Craft Mortgages and is also a member of the Canadian Mortgage Brokers Association of BC. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. United Pallets and Crates is located at 11585 134th Street in Surrey, BC. Give Sam Dooler a call At 604-760-2028. or call the office number at 604-634-2001. You can also visit the website, which is www.unitedpalletsandcrates.com, or send us email at info@palletsandcrates.com. Thank you sponsors. और अगर आप भी अपने बिजनेस को हाईलाइट्स करने चाहते हैं इस शो में तो आप कमेला को एंड हम किसी को कॉल कर सकते हैं। अब हमारे साथ पूरे हफ्ते बार के फीजी न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम फीजी एज वेल एज लोकल न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स। नमस्कार, फीजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर, कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। सुबह हाईकोर्ट 14 मार्च को निर्णय देगा कि जहां डीपीपी ने पूर्व प्रधानमंत्री वोरेंगे बैनिमरामा और सस्पेंडेड पुलिस कमिश्नर ब्रिगेडियर जनरल सितिवेनी गिल्हियो को बरी करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर किया था। बैनिमरामा और पर न्याय की प्रक्रिया को विकृत करने का प्रयास का एक आरोप लगाया गया था, जबकि गिल्हियो पर पद के दुरुपयोग का एक आरोप लगाया गया था। पिछले साल मजिस्ट्रेट सैनी पोमाऊ ने उन्हें दोषी नहीं पाया और बरी कर दिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस सलिसितेमो के समक्ष सुनवाई के दौरान डीपीपी की दलील का जवाब देते हुए बैनिमरामा और गिल्हियो के वकील देवनेश शर्मा का कहना है कि अदालत के पास निर्णय लेने के लिए पर्याप्त मटेरियल थी और मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के बारे में कुछ भी अनुचित या विकृत नहीं था।
शर्मा का कहना है कि प्रोसिक्यूशन आगे की जांच के लिए अन्य गवाहों को वापस बुलाने का दायित्व भी अदालत पर डालने का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि डीपीपी स्पष्ट रूप से बचाव पक्ष द्वारा उठाई गई किसी भी बात की समीक्षा करने के लिए किसी भी गवाह को वापस बुला सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया है। शर्मा पूछते हैं कि फिर इसके लिए अदालत को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है। उनका कहना है कि इस बात की बहुत स्पष्ट संभावना है कि डीपीपी ने बचाव पक्ष के एविडेंस को स्वीकार कर लिया है। शर्मा का कहना है कि यूएसपी मामले में कोविड प्रतिबंधों का उल्लंघन कोई रिसेंट इन्वेंशन नहीं था और एक समाचार लेख द्वारा इसका खंडन किया गया था और बचाव जून 2020 से उपलब्ध था। उनका कहना है कि मजिस्ट्रेट निष्पक्ष थे और उन्होंने खंडन करने का हर मौका दिया था और अदालत ने निर्णय लेने के लिए अभियोजन पक्ष की मदद नहीं ली थी। उनका कहना है कि एक्टिंग पुलिस कमिश्नर रुसियाते टुंड्रावू बाइनीमरामा के खिलाफ सबूत देने वाले एकमात्र गवाह थे। शर्मा का कहना है कि टुंड्रावू से पूछा गया था कि क्या वो गिलियो और बाइनीमरामा के बीच बातचीत का हिस्सा थे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इसे चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से सुना था। उनका कहना है कि चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनटों के बिना टुंड्रावू इससे बच जाता। उनका कहना है कि अगर बाइनीमरामा और गिलियो के बीच कोई बातचीत हुई तो टुंड्रावू एक पार्टी नहीं था, तो इस बारे में कैसे टिप्पणी कर सकते हैं। और कहना है कि बाइनीमरामा से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यूएसपी मुद्दा अन्य कोविड जांच के बारे में था और उन्हें यूएसपी फाइनेंस और ऑडिट मामले के बारे में कुछ नहीं पता था। बाइनीमरामा को यह भी कभी नहीं बताया गया था कि यूएसपी के विरोध प्रदर्शनों का जांच हो रही है और अगर डीपीपी ऑब्जेक्ट करना चाहता है तो इसे साबित करने के लिए सीआईडी के किसी को लाना पड़ेगा। शर्मा का कहना है कि मजिस्ट्रेट पोमाओ ने कहा कि टुंड्रावू के पास ऐसी बड़ी चुनौती क्यों है क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के खुफिया जांच और अभियोजन के फॉर्मर चीफ ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन बियो मतवो को 2020 में जांच रोकने के लिए कहने के लिए तैयार होकर आए थे। उनका कहना है कि सच तो यह है कि जांच कभी नहीं रुका। उनका कहना है कि अपील खारिज कर दी जानी चाहिए। सोमवार को वोनिको को सेटलमेंट सेंगांगा में 2 साल की बच्ची की मौत के बाद पुलिस लापरवाही के तत्वों की जांच कर रही है। डिविजनल पुलिस कमांडर नॉर्थ एसएसपी कमियोली बलाइंड्रोका का कहना है कि पुलिस जांचकर्ता लापरवाही के तत्व की जांच करेंगे। उनका कहना है कि उन्हें अभी तक नेशनल फायर अथॉरिटी से आग का रिपोर्ट नहीं मिला है। एसएसपी बलाइंड्रोका का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए बृहस्पतिवार को ले जाया जाएगा। आग लगने से उनके 3 बेडरूम वाले टिन लकड़ी के घर को नष्ट हो जाने के बाद 2 साल की लड़की की मौत हो गई है। नेशनल फायर अथॉरिटी द्वारा एकत्र की गई जानकारी से पुष्टि होती है कि घर के अंदर केवल 2 बच्चे थे, 2 साल की लड़की और 3 साल की उनकी बहन। नेशनल फायर अथॉरिटी का कहना है कि 3 साल का बच्चा पड़ोसी के घर भाग गया जबकि 2 साल का बच्चा जलते हुए घर के अंदर फंस गया था। उनका कहना है कि माता पिता बच्चों को घर के में अकेला छोड़कर अस्पताल चले गए थे। घर को 90% से ज़्यादा नुकसान हुआ है। आग लगने से संभावित कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई है। हालांकि नेशनल फायर अथॉरिटी का संदेह है कि 3 साल का बच्चा माचिस से खेल रहा था। लोटोका हाई कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पेनैया ड्रीव नवेलुलु को सस्पेंडेड सेंटेंस सुनाई है। नवेलुलु को 2 साल सलाखों के पीछे बिताने होंगे जबकि 1 साल के शेष समय के लिए उन्हें 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। कोर्ट ने सुना कि घटना मई 2019 में नांदी में एक नाइट क्लब के बाहर हुआ था। नवेलु अपने दोस्तों के साथ नांदी टाउन गया था और आधी रात तक शराब पीने के बाद वो नाइट क्लब में चले गए। कोर्ट ने सुना कि नाइट क्लब में नवेलु को मुलाकात पोलियसी रोकोवांगा से हुआ जो बहुत नशे में था और वो लड़ना चाहता था। जब नवेलुलु सुबह करीब 4 बजे क्लब से बाहर निकला तो उन्होंने पीड़ित को अपना पीछा करते हुए पाया। 33 वर्षीय व्यक्ति को यह आभास हो गया था कि मृतक उस पर हमला करने वाला है और उसने पीड़ित को एक मुक्का मारा जो सीमेंट फुटपाथ पर तिरछा गिर गया। अदालत ने सुना कि जब पीड़ित बेहोश पड़ा था तब नवेलुलु ने उनके चेहरे पर फिर से एक मुक्का मारा। फिर वह पीड़िता को छोड़कर टैक्सी में बैठकर वहां से भाग गया। ब्रेन हेमरेज के कारण उसी रात पीड़िता की मृत्यु हो गई। जज जस्टिस अरुणा अलुंगते का कहना है कि उन्होंने हाल के दिनों में फिजी में नाइट लाइफ में जुड़ी हिंसा में वृद्धि देखी है।
जस्टिस अलुंगते का कहना है कि जनता को शराब से अत्यधिक सेवन से प्रेरित इस प्रकार की अनियंत्रित हिंसा पर चिंतित होना चाहिए। जज का कहना है कि फिजी जो पहले से ही एक रिस्की टूरिज्म डेस्टिनेशन घोषित होने के कगार पर है, टूरिस्ट और एंटरटेनमेंट बिजनेस में लगे सभी लोगों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। एक सप्ताह में दूसरी बार न्यू वेस्टमिंस्टर पुलिस का कहना है कि उसने एक रेप्लिका बंदूक बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि एक अधिकारी ने शुक्रवार को एक कार को अग्रेसिव तरीके से चलते देखा। अधिकारी ने कार को रोका और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे गाड़ी चलाने से प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। कार के अंदर एक फायरआर्म पाया गया, लेकिन यह रेप्लिका रूप से निर्धारित किया गया था। ठीक 3 दिन पहले 27 फरवरी को उसी अधिकारी ने क्वींसब्रो में एक कार के अंदर 2 लोगों को सोते हुए पाया था। एक बंदूक जो नकली था को कार के अंदर देखा जा सकता था और लोअर मेनलैंड इंटीग्रेटेड रिस्पांस टीम को बुलाया गया और उन लोगों को हिरासत में लिया गया। न्यू वेस्टमिंस्टर पुलिस डिपार्टमेंट जनता को याद दिलाना चाहता है कि रेप्लिका फायरआर्म्स रखना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अपराध करते समय इसका उपयोग करना इल्लीगल है। धमकी देने या डराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी हथियार को ले जाना या छुपाना भी गैर कानूनी है। बीसी हेल्थ सिस्टम स्टाफिंग चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकार का कहना है कि वे पिछले साल नर्सेस टू पेशेंट रेशियोज के आसपास बीसी नर्सेस यूनियन के साथ हुए समझौते पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार को एक अपडेट में हेल्थ मिनिस्टर एड्रियन डिक्स ने कहा है कि इस तरह के रेशियोज को ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर अनुभवों में सुधार और जीवन बचाने के लिए दिखाया जा रहा है। उनका कहना है कि रेशियोज को एक साथ रखने के लिए बैठने और काम करने और इससे सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई स्पेसिफिक डेट प्रदान नहीं की गई। हालांकि प्रोविंस का कहना है कि अपडेट जून में आएगा। प्रोविंस का कहना है कि एलिजिबल नर्सेस को 1 अप्रैल से शहरी और मेट्रो वैंकूवर के लिए $15,000 तक मिल सकते हैं। और उन नर्सेस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो बीसी हेल्थ सिस्टम में नई है और साथ में या उन नर्सेस को जो वापस आना चाहते हैं। रूरल या ग्रामीण इलाकों में पदों के लिए बोनस 30,000 तक हो सकता है। इस बीच बीसी यूनाइटेड पार्टी इससे प्रभावित नहीं हुई है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि प्रोविंस में लगभग 6,000 नए वैकेंसीज खाली है। कनाडा के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मलोनी की मृत्यु हो गई है। मलोनी की मृत्यु पिछले गुरुवार को फ्लोरिडा हॉस्पिटल में हो गई। वो 84 वर्ष के थे। पूरे देश में शुक्रवार को कैनेडियन फ्लैग को हाफ मास्ट पर रखा गया था। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ खेलकूद की जगत से जानकारी। LA सेवन्स इस सप्तांत जारी रहा। पूल प्ले के अंतर्गत फिजी का भिड़ंत ग्रेट ब्रिटेन से हुआ, जिसमें फिजी ने ग्रेट ब्रिटेन को 15-12 से पराजित किया। फिजी ने कनाडा को 40-0 से पराजित किया। फ्रांस और फिजी के बीच में फिजी की जीत फ्रांस से 14-10 से हुआ। अन्य पूल खेलों में फ्रांस ने कनाडा को 24-7 से पराजित किया। आयरलैंड की जीत साउथ अफ्रीका से 17-0 से हुआ। उधर अर्जेंटीना ने स्पेन को 28-19 से पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया की जीत 24-17 से हुआ। अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका के बीच में अर्जेंटीना की जीत साउथ अफ्रीका से 17-5 से हुआ। आयरलैंड ने अर्जेंटीना को 24-14 से पराजित करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाया। और उधर फिजी की हार स्पेन से 21-19 से हुआ। ऑस्ट्रेलिया की हार ग्रेट ब्रिटेन से 26-19 से हुआ। सेमीफाइनल फ्रांस और आयरलैंड के बीच में होगा और दूसरा सेमीफाइनल स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में होगा। वैंकूवर कनेक्स की ओर अगर हम देखते हैं तो मंगलवार को पिट्सबर्ग पेंगुइन्स के बीच में जो खेल हुआ उसमें वैंकूवर कनेक्स की हार 4-3 से हुआ। थर्सडे को LA किंग्स के साथ वैंकूवर कनेक्स की 5-1 से हार हुआ। रविवार को 5 बजे एनाहाइम डक्स के साथ में वैंकूवर कनेक्स का खेल होगा। पॉइंट्स टेबल की ओर देखते थे तो अभी भी वैंकूवर कनेक्स प्रथम स्थान पर है। 62 गेम्स के बाद उनके पास 83 पॉइंट्स है। विनिपेग जेट 59 गेम्स के बाद उनके पास 81 पॉइंट्स है। डैलस स्टार्स के पास 62 गेम्स के बाद 81 पॉइंट्स है। कोलोराडो एवलंच 61 गेम्स के बाद 79 पॉइंट्स पर है। कनेक्स का सुपरस्टार जो है एलियस पैटरसन को 8 ईयर्स के लिए $92.8 मिलियन के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया गया है। अगर आप भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। आप सभी को शिवरात्रि का पर्व शुभ और मंगलमय हो। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। A very happy 70th birthday to my mom, Sarah Reddy of Port Coquitlam. Best wishes are from her husband, Pramal Reddy, kids, myself,
Joshi, Jessica and Daniel, grandkids Alicia, Shiana, Kaden and Mason, 2 son-in-laws, Stephen and Edward, and rest of the family and friends. We at Fiji in Focus team would like to wish my mom, Sarah Reddy, a very happy birthday and many more to come. Wishing her a long and healthy life. बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारे साल, ये दुआ है हमारी. We have Vic Prasad Ji here to talk about Mahashivratri. Please have a look. नमस्कार, फिजी फोकस देखने वाले सभी श्रोताओं को विक प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। एक खास कार्यक्रम लेकर हम आज आए हैं, जबकि महाशिवरात्रि पर्व इस सप्ताह मनाया जाएगा। तो शिवरात्रि के अवसर पर हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर आए हैं कि क्यों शिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार महाशिवरात्रि माना जाता है, जो फागुन मास के महीने में मनाया जाता है। और इस दिन कहा जाता है कि कई कारण हैं महाशिवरात्रि मनाने के लिए। पहला तो जब महादेव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो उस दिन शिवरात्रि का रात्रि था, तो उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दूसरा कारण बतलाया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के बाद में जो विष निकला था, 14 रत्नों में से एक रत्न था विष, तो विष से पूरा संसार जलने लगा। तो इस कारण से महादेव जी को बुलाया गया और महादेव जी आकर हलाहल विष का पान करते हैं ताकि संसार बचा रहे। तो उस दिन भी, उस कारण से भी महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जाता है। तीसरा कारण कहा जाता है कि जब माता पार्वती और या माता सती ने जब अपने राजा दक्ष के, अपने पिता के घर, राजा दक्ष के घर पर जाकर अपने शरीर को, अपने देह को त्याग दिया था, उस हवन में आहुति दे दिया था, तब महादेव जी क्रुद्ध हो गए थे और उस समय जो तांडव किया था, उस दिन को भी महादेव जी का आराधना करने के लिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो ये कुछ कारणें बतलाए गए हैं जब महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो कैसे मनाते हैं? कुछ लोग 4 दिनों तक मनाते हैं, या कुछ लोग जो आखिरी दिन होता है महाशिवरात्रि का रात्रि होता है उस दिन मनाते हैं। 4 दिन भी आप मना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप 4 दिन तक नहीं मना सकते, एक ही दिन मना सकते हैं। तो लेकिन जो लोग मनाते हैं, कहा जाता है कि जो अंतिम दिन होता है, जो मुख्य दिन होता है, वो 4 पहर तक महादेव जी का जो रात्रि है वो मनाना चाहिए, पूजन करना चाहिए। कहते हैं कि पहले पहर में महादेव जी के शिवलिंग को अभिषेक करना चाहिए, जल से अभिषेक करना चाहिए। फिर दूसरे पहर में जाकर दूध से अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग का। फिर तीसरे पहर में जाकर दही से अभिषेक करना चाहिए और चौथे पहर में मध से अभिषेक करना चाहिए। महादेव जी भोले शंकर है, हमेशा सभी के सुर असुर के जो भी उनकी आराधना करते हैं, सभी के जो वरदान दे देते हैं, सभी के पूजन को सुनते हैं। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर पर शिवलिंग होता है, महादेव जी आकर उसमें विराजमान होते हैं। तो अगर आपके घर पर भी शिवलिंग है तो हो सके या आप उनका सेवा कीजिए, उन पर दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, दही चढ़ाइए अगर हो सके, और बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए, कुमकुम या चंदन का टीका करना चाहिए। और पूजन विधि में बतलाते हैं कि पूजा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, धतूरा चढ़ाना चाहिए भगवान को, और 108 बार जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय का वो जाप करना चाहिए। तो इस तरह से आप व्रत भी धारण कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में क्षमता है तो आप व्रत धारण करके महादेव का जो शिवरात्रि पर्व है उसको मना सकते हैं। बस हो सके अगर कम से कम तो नहीं तो बस ओम नमः शिवाय का मंत्र आप 108 बार जप लीजिए, आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा। हो सके गन्ना मिले तो गन्ना लाकर चढ़ा दीजिए, अमरूद मिल जाए तो ऐसे मिल जाए सामान तो लाकर चढ़ा दीजिए, धतूरा अगर मिल जाए तो भगवान को धतूरा चढ़ा दीजिए, और बेलपत्र अगर मिल जाए तो वो उससे प्रभु महादेव जी प्रसन्न होते हैं। लेते आपसे यहीं पर विदा, मिलेंगे फिर किसी एक कार्यक्रम में। बस फिजी फोकस सुनते रहिए, देखते रहिए। आप सभी को विक प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। Thank you, Vic Prasad Ji. We have Pracharak and the treasurer of Gita Gyan Society of BC in our studio to talk about Shivratri and Holi. Please have a look. नमस्कार,
जो लोग फिजी इन फोकस को देख रहे हैं, आप सभी को कमिला सिंह का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियोज में आए हुए हैं धीरेन्द्र प्रसाद जी, जो कि ट्रेजरर है गीता ज्ञान मंदिर, जो कि राइट हियर इन सरी। उसी के साथ साथ में प्रचारक रविदास जी भी हैं। और आज इन्होंने हमारे स्टूडियोज में आए हैं बातचीत करने के लिए, कि जैसे आपको पता है शिवरात्रि आने वाला है, उसके बाद में फिर होली। सो वेलकम बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग टुडे। नमस्कार। नमस्कार। जी हाँ, तो आप बताइए कि जो शिवरात्रि है, आगे शुरू करते हैं शिवरात्रि। पहले तो फर्स्ट टाइम यू हैव बीन ऑन द सेट, वेलकम टू फिजी इन फोकस। और सेकेंडली आप यहाँ पर आए हैं, जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपको पता है फरवरी इज गॉन, मार्च इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और जब मार्च आता है तो शिवरात्रि है, फिर होली आती है। काफ़ी हिंदुस्तानी का जो त्यौहार है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आप आज आए हैं स्टूडियोज में शिवरात्रि के बारे में बात करने के लिए। सो लोगों को बता दीजिए शिवरात्रि है क्या। आप प्रचारक है, आप शुरू करें। शिवरात्रि जो है और शिव जी का पूजन होता है, उसका व्रत रखते हैं, रात भर जागरण करके अगले दिन जो है आखिरी अर्घ को चढ़ाते हैं। 4 प्रहर पूजन होना चाहिए, तब हमें मुक्ति मिलती है और जितनी पाप होती है सभी खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से इस मार्च को 4 तारीख से गीता ज्ञान मंदिर में शिवरात्रि पर्व को मनाया जाएगा। 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। 8 तारीख जो है महाशिवरात्रि का दिन है, तो 4 तारीख से 8 तारीख तक का 7:30 बजे रात से 9 बजे रात तक का शिव महापुराण की कथा होगी। उसके बाद में आरती होगी, प्रसाद का वितरण और फिर प्रतिभोज रहेगा। जो मार्च 8 तारीख है उस दिन फिर शिव महापुराण की कथा होगी, हवन यज्ञ होगा, आरती होगी, प्रसाद का वितरण और फिर प्रतिभोजन रहेगा। तो इसी प्रकार से उस शिवरात्रि जो है व्रत है वो संपन्न होगा मार्च 8 तारीख को गीता ज्ञान मंदिर में सरी में। आपको एड्रेस पता है जो लोग देख रहे हैं? 11387 128 स्ट्रीट सरी BC। अच्छा, और जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं सभी को निमंत्रण है? सभी को हम निमंत्रण कर रहे हैं। मंदिर का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कार्यकर्ता है, वो सभी से आमंत्रित करते हैं कि आप आकर इस शिवरात्रि जो कथा है, शिव महापुराण की कथा है, उसमें आकर अवश्य ही भाग ले। और खासकर जो आखिरी दिन है वही तो आखिरी दिन ही असली दिन है, तो आकर आप अवश्य ही भाग ले, क्योंकि मंदिर सुबह से रात तक खुली रहेगी। आप सभी अवश्य ही आए और वहाँ पर हम सभी मिलेंगे। तो होली पे कुछ, जब आए हैं हमारे स्टूडियोज में, तो होली के बारे में भी कुछ कहिए, क्या होने जा रहा होली के दिन पर? हमारे गीता ज्ञान मंदिर में फाग सम्मेलन है मार्च 9 तारीख को शाम को 7:30 बजे से। और कई मंडलियाँ आएंगी। सम्मेलन का मतलब ये होता है कि सभी एक सामान ही देखा जाएगा और हम उन लोगों से सीख लेंगे, यानी कि सीखेंगे कि फाग क्या है, चौथाल क्या है। तो सभी मंडलियों को हमने आमंत्रित किया हुआ है, आएंगे और फाग सम्मेलन होगा। जब तक कि आखिरी मंडली गा न ले तब तक का हम ऐसे ही वहीं पर मंदिर में जुटे रहेंगे और खाने पीने के लिए भी प्रबंध किया गया है। तो हम आप सभी से आशा करते हैं कि मंदिर के जो कार्यकर्ता है वो सभी को आपको निमंत्रण करते हैं कि आकर अवश्य ही भाग ले इस मार्च 9 तारीख को गीता ज्ञान मंदिर में सरी BC में। और अच्छा आप बताइए मार्च 30 को क्या होने जा रहा है? मार्च 30 मार्च 30 तारीख जो है वहाँ पर मंदिर में सुबह 10 बजे से हम होली खेलेंगे, यानी कि रंग बरसे। तो रंग खेलेंगे, हमारा जैसे हिंदुओं का नया साल होता है और हम खुशियाँ मनाएंगे। तो जो दुख है, जो किसी से हम दुश्मनी वगैरह के हैं, सभी को हम पीछे छोड़ देंगे और आगे वर्ष जो आने वाली है, नया साल जो आने वाली है, उसको हम अच्छी तरह से पर्व को मनाएंगे, रंग सभी को लगाएंगे और खूब धूमधाम से चौताल फाग गायन होगा। अच्छा ट्रेजरर जी, आप कुछ कहिए, आप चुप थे अभी, कुछ बोलिए मंदिर के बारे में। या मैं सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ, सब कोई आए और सहयोग दे मंदिर के लिए, फाग में और रंग खेलने के लिए सभी लोग आए। हम अच्छे से मनाएंगे रंग खेलने के लिए।
अगर जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर आपसे बात करना चाहते हैं और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहते हैं इसके बारे में, किससे बात कर सकते हैं? हमारा जो ट्रेजरर है उनका फ़ोन नंबर देते हैं। बोलिए ट्रेजरर जी। 604-401-2686 धीरेन्द्र शर्मा। एक बार फिर से। धीरेन्द्र शर्मा 604-401-2686। थैंक यू सो मच जी हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। और जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, लाइक दे सेड कि सभी को, इट डजंट मैटर हु यू आर, एनीबॉडी कैन कम एंड एंजॉय शिवरात्रि। और उसके साथ साथ में होली का त्यौहार जो ये मनाने जा रहे हैं। और फिर आखिरी दिन तो द फन डे है जो 30th को है, 10:30 बजे से 3 बजे शाम तक, और उसमें भी खाना पानी का सभी का प्रबंध होएगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। Thank you, Ji. And they are giving an open invitation to you all to come to their mandir for Shivratri and Holi. हमारे पास इतने ही समय था। अब हम सभी से विदाई लेने चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को इंजॉय किया होगा और ऐसे ही हमारे फिजियन फोकस से जुड़ते रहिए। इस शो को आप देख सकते हैं Thursdays at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. Vancouver time on Channel 4 and in Calgary 5 p.m. on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पर भी Fijian Focus को देख सकते हैं। Please press the like button and do not forget to share and subscribe to our channel. इसको स्पॉन्सर करने के लिए please call Camilla at 604-537-5123 or you can phone Sarah Sharma at 604-992-7253. अपना और अपना फैमिली के ख्याल रखिए। Stay safe and stay healthy. मैं हूँ आपके होस्ट Joshi Reddy. Thank you for spending your valuable time with Fijian Focus. Happy Shivratri to you all from our family at Fijian Focus to you all. Namaste and Vinaka. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events.